عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ایم بی شاہ کو بلیک منی کی جانچ کرنے کے لیے تشکیل کردہ ایس آئی ٹی کا چیئرمین مقرر کیا جائے اور جسٹس ارجیت پرساد کو نائب چیئرمین مقرر کیا جائے۔ The court has directed that within 3 weeks a notification should be issued by the Union of India for the appointment of Justice M.B. Shah, a retired judge of the Supreme Court, to be appointed as chairman, and Mr. Justice Arjit Pasayab to be appointed the vice chairman, and they'll oversee the working of the SIT committee, and that's a very big breakthrough today. بلیک منی مقدموں کی سماعت کرتے ہوئے آج ہی سپریم کورٹ نے حکومت کو ایک اور حکم دیا ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ بلیک منی سے متعلق جن معاملوں کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں ان کی تفصیلات 3 دنوں کے اندر عرضی گزار کو بھی بند لفافے میں فراہم کرائی جائے۔ اس سے پہلے 29 اپریل کو حکومت نے جن معاملوں کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں ان سے متعلق تفصیلات سپریم کورٹ کو بند لفافے میں سونپی تھی۔ کورٹ نے انہی تفصیلات کو عرضی گزار کو بھی مہیا کرانے کا حکم دیا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی جانب سے جموں کشمیر پر کیے گئے ریمارک کی حکمراں جماعت کانگریس، اپوزیشن بی جے پی اور سرکردہ شخصیات نے سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کانگریس اور بی جے پی دونوں نے ہی کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ حصہ قرار دیا۔ واضح ہے کہ پاکستان میں یوم شہیدہ کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی آرمی چیف راحیل شریف نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک سے تعبیر کیا تھا۔ میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو اس طریقے کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ کشمیر سے پاکستان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہا ہے اور کشمیر کے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ پاکستان ہندوستان سے اتنی دور نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ نہ چلے کہ کشمیر کے لوگ اپنی رائے سے اپنی پسند کی سرکار چن رہے ہیں۔ اگر کشمیر کو وہ اپنے شہرگ مانتے ہیں، اپنے گلے کی رگ مانتے ہیں، تو ہم اس رگ کو کاٹنے کے لیے کمپیٹنٹ ہیں۔ یہ بات انہیں اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ It is important that the Pakistan authorities remember that the peace in this region cannot be affected by their hawkish, uncalled for statements. The BJP condemns the statement made by the Army Chief of Pakistan. It is for the civilian elected government of Pakistan to speak up in order that the region remains peaceful and help the development of all the democracies around. This uncalled for statement by the Army Chief should be rejected comprehensively, and BJP voices its concern that such statements do not help in building good neighborhood. کشمیر ہمارا سرمور ہے اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے جسم سے ہمارے سر کو الگ کر سکے۔ What the Army Chief has said, I think is bizarre. It is absolutely bizarre. I would like to remind you that Pakistan, it was not India that annexed Kashmir. He said that Kashmir is the jugular vein of Pakistan. I say that Kashmir is the heart of Hindustan. ماضی کی طرح آج چنئی میں ہوئے دھماکوں پر بھی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ بی جے پی نے نریندر مودی کی ریلیوں کی سیکیورٹی کو لے کر ایک مرتبہ پھر خدشات کا اظہار کیا۔ ادھر کانگریس نے بی جے پی کے خدشات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ دھماکے اس ریاست میں ہوئے جہاں انتخابات ہو چکے ہیں۔ چنئی دھماکوں نے ایک کی جان لی اور کئی کو زخمی کر دیا۔ موقع ہے متاثرین کے تئیں اظہار ہمدردی کا، لیکن سیاسی جماعتیں اسے بھی انتخابات میں بھنانے کی کوشش میں جٹ گئی ہیں۔ اپوزیشن بی جے پی مرکزی حکومت پر سیکیورٹی کے تعلق سے غیر سنجیدہ ہونے کا الزام عائد کر رہی ہے۔
बीजेपी के मुताबिक इंतखाबात के दौर में शरपसंद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं और मरकजी हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। बीजेपी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी और उनकी रैलियों को दहशतगर्दों के निशाने पर बताते हुए हुकूमत से संजीदा इक़दामात का मुतालबा किया है। There were enough indications that forces inimical to India, forces which are trying to create disharmony in India, have remained active and would remain active through the election process. Not only were we very concerned about the safety and security of BJP rallies, Shri Narendra Modi ji's rallies, and the threat perception was something which we were worried about. We did highlight it to Shri Sushil Kumar Shinde. कांग्रेस ने बीजेपी के खदशात को मुस्तरद किया है। This is a blast in Chennai. Tamil Nadu elections were completed on the 24th of April. There is no rally of Shri Narendra Modi at Chennai. तमिलनाडु की अपोजिशन जमातें डीएमके और डीएमडीके ने जयललिता हुकूमत को नज़्म-ओ-नस्क कायम रखने में नाकाम करार दिया है। रेलवे के ममलिकती वजीर आधीर रंजन चौधरी ने भी रियासती हुकूमतों को रेलवेज की सिक्योरिटी पर ध्यान देने को कहा है। आधीर रंजन के मुताबिक मुल्क के तूलो अर्ज में फैले हुए रेलवे के वसी नेटवर्क को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करना महकमे के लिए मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में एक जेल में धमाका हुआ। इस वाक़े में कई कैदियों के हलाक और 100 से ज्यादा के झुलस जाने की खबर है। वाक़या बुध की रात एस्काम्बिया काउंटी की जेल में यूकिंग फैसिलिटी पर हुआ। धमाके के सबब इमारत जुज़वी तौर पर मुनहदिम हो गई। धमाके के वक्त इमारत में 600 कैदी महरूज थे। गुज़िश्ता दिनों हुई मूसलाधार बारिश के सबब जेल में सैलाब आ गया था। ये अभी वाज़ेह नहीं हो सका है कि धमाके की वजह क्या थी। इराकी वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल-मालिकी ने इराक के पार्लिमानी इंतखाबात में दर्ज भारी रायदही को दहशतगर्दों के मुंह पर तमाचा करार दिया है। नूरी अल-मालिकी ने कहा है कि इराकी हुकूमत हर किसी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और इसमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। इराकी सदर ने इराक के मसले पर किसी के भी साथ मुज़ाकरात करने की बात कही। هذا الذي حصل في الحقيقة أنا أعبر عنه بأنه صفعة بأكثر من وجه لا يحب للعراق خيرا. للإرهابيين الذين أرادوا تعطيل العملية من خلال ما قاموا به من عمليات والتي تصدى لها أبناؤنا من القوات المسلحة والسياسيين وأبناء العشائر، وصفحة بوجه الذين يريدون تزييف الانتخابات. आली न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। रोजगार की दूरी को कम करता है। मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। दिल्ली में खूबसूरत पायदार नए नए डिजाइन की फुटवेयर्स का होलसेल डीलर हिमालय फुटवेयर्स 5235 वलीमारान चांदनी चौक दिल्ली। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। उफ डैंड्रफ, झड़ते बाल, इचिंग स्कैल्प, नीड एन एक्सपर्ट। हबीब हर्बल हेयर ऑयल, एक्सपर्ट एंटी फंगल हेयर नरिशिंग ऑयल। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। उफ डैंड्रफ, झड़ते बाल, इचिंग स्कैल्प, नीड एन एक्सपर्ट। हबीब हर्बल हेयर ऑयल, एक्सपर्ट एंटी फंगल हेयर नरिशिंग ऑयल।
के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। यूक्रेन में अमेरिकी सफीर ने खबरदार किया है कि रूसी अफवाज यूक्रेन में दाखिल होने की सूरत में अमेरिका की जानिब से उसका नागुज़ेर और शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी सफीर ने कहा कि अगर यूक्रेन में रूसी अफवाज दाखिल होती हैं तो ये एक बड़ा इश्तियाल अंगेज कदम होगा। यूक्रेनी सरहद पर रूस के हजारों फौजी और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं और इस बात का भी खदशा जाहिर किया जाता रहा है कि मशरिकी यूक्रेन में जारी बहरान की आड़ में रूस अपने अफवाज को यूक्रेन में भेज सकता है। इसी सूरत की जानिब इशारा करते हुए यूक्रेन में अमरीकी सफीर जेफरी पैट ने कहा कि इसके तबाहकुन नतायज होंगे। Russian troops crossing Ukraine's borders would be a major escalation and would draw an inevitable sharp reaction from the United States, and I think that's understood by everybody. It would be a dramatically unfortunate development, which I think would produce only the most tragic consequences. अमरीकी सफीर ने ये इंकशाफ भी किया कि यूक्रेनी हुकूमत को मशवरा दिया गया है कि वो यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर रूस हामी मुजाहिरीन का कब्जा खत्म कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल न करें। Our advice would be to encourage the government to continue on the course that it has been pursuing of seeking a strategy to cordon these cities, to use their security forces and the army if necessary to ensure that weapons, money, instability are not trafficked in and out of these cities, but not to engage in the forceful clearing of these buildings. याद रहे कि रूस हामी मुजाहिरीन ने मशरकी यूक्रेन के कम से कम 10 शहरों में सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशनों पर पिछले कई हफ्तों से कब्जा कर रखा है। मंगल के रोज मुजाहिरीन ने लोहानसिक में एक और सरकारी इमारत पर कब्जा जमा लिया। मुजाहिरीन यूक्रेन के शोरी से ज्यादा इलाकों में ज्यादा खुद मुख्तारी के लिए रेफरेंडम कराए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। काबिले गौर है कि इसी तरह के एक रेफरेंडम के बाद रूस ने यूक्रेन के शहर क्राइमिया को रूस में शामिल कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में आज सुबह सवेरे पार्लियामेंट की इमारत के सामने फौजी मशक की गई। फौजी मशक का मकसद सरकारी इमारतों की हिफाजत के लिए हिफाजती दस्तों की मुस्तैदी और तैयारियों का जायजा लेना था। मीडिया के सामने की गई इस फौजी मशक में 4 बख्तरबंद गाड़ियों और तकरीबन 200 फौजियों ने हिस्सा लिया। काबिल गौर है कि फौजी मशक यूक्रेन के कारगुजार सदर ओलेक्जेंडर तुचनोव के उस एतराफ के पस मंजर में की गई कि पुलिस और दूसरे हिफाजती दस्ते मशरकी यूक्रेन में सरकारी इमारतों पर रूस हामी मिलिटेंटों के लगातार कब्जों को रोकने में नाकाम हो गए हैं। ताहम फौजी मशक को यूक्रेन के स्टेट गार्ड के सरबराह ने कामयाब करार दिया। Ми можемо прибути на місце, де знаходиться об'єкт державної охорони, Верховна Рада України, і наскільки ми спроможні оперативно розставити наряди і спрацювати в умовах реального часу. Це те, що робилося сьогодні, воно було в задумі тільки керівника управління державної охорони, тобто всі інші працювали в режимі тривозі, по тривозі працювали. Тому ті навчання, які ми проводили сьогодні, я рахую, що завданням справились। उधर मशरकी यूक्रेन के शहर दोनेत्स्क में आज हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने उस इमारत पर धावा बोल दिया जिसमें मकामी सरकारी वकील का दफ्तर वाक़ है। इस मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान संगीन झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। वाज़ेह है कि दोनेत्स्क यूक्रेन के बरतरफ किए गए सदर विक्टर यानुकोविच की हिमायत का गढ़ माना जाता रहा है। हिंदुस्तान में हो रहे आम इंतखाबात में सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क के अवाम भी बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं। जी हां, हिंद नेपाल सरहद पर रहने वाले तकरीबन 2 करोड़ नेपालियों को नेपाल की हुकूमत से ज्यादा हिंदुस्तान की हुकूमत से सरोकार है।
दरअसल 1950 में हिंद नेपाल के दरमियान हुए मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की आवाम के लिए सरहदें खुली हैं और अपने काम के सिलसिले में रोजाना लाखों लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं। हिंद नेपाल सरहद पर रहने वाली आवाम का कहना है कि वो हिंदुस्तान के आम इंतखाबात में हक़े राय दही यानी वोट का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान में बनने वाली हुकूमत से जितना नफा या नुकसान हिंदुस्तानियों को हो सकता है उसका उतना ही असर इन पर भी पड़ता है। महंगाई बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ भी और ज्यादा ऊंची बढ़ जाती है, इसलिए अब कांग्रेस की सरकार में ज्यादा महंगाई हो गई है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरी सरकार बने तो कुछ हम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। असर आता है, जब हम लोग पड़ोस में हैं तो क्यों नहीं असर आएगा, हर चीज का असर पड़ता है। किस तरह से सर? अब जो हम लोग नजदीक हैं, पड़ोस में हैं, जो है हमारा जो है आना जाना उधर का है, उधर से इधर का है, हमेशा हम लोगों को दिन में 2-4 बार तो जरूर आते रहते हैं, तो क्यों नहीं असर पड़ेगा। हम देखते हैं कि जो इंडिया में चुनाव होता है उसका असर नेपाल में भी पड़ता है, और इंडिया में जो खुशी होती है वो नेपाल में भी खुशी होती है। इंडिया के लोग दुख उठाते हैं, नेपाल के भी लोग दुख उठाते हैं। इंडिया में चीनी महंगा होती है तो यहाँ भी चीनी महंगा होता है। और अब बात करेंगे यौम मई की यानी लेबर डे की। यौम मई पर एशियाई मुल्कों में रैलियों और मार्चों का खास इत्मीनान किया गया। इस मौके पर मेहनत कशों के साथ इंसाफ किए जाने का मुतालबा भी किया गया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और कंबोडिया जैसे मुल्कों में मेहनत कशों के हकूक के तहफ्फुज़ की आवाजें भी बुलंद की गईं। हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में यौम मई के मौके पर मेहनत कशों के हकूक के तहफ्फुज़ के हक में रैलियां निकाली गईं। मेहनत कशों को बेहतर सहूलतों और मुआवजे में इजाफे का मुतालबा किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के हजारों मजदूरों ने एक बड़ी रैली में हिस्सा लिया। इन मजदूरों ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। गुज़िश्ता बरस नाजायज तौर से कायम राना प्लाजा गारमेंट फैक्ट्री महदूद होने के सबब 1100 अफराद हलाक हो गए थे। कम तनख्वाहें देने वाले मुल्कों में बांग्लादेश भी शामिल है। उधर फिलिपाइन की राजधानी मनीला में हजारों अफराद ने यौम मई के मौके पर एहतजाजी मार्च किया। उधर कंबोडिया में हुकूमत ने यौम मई के मौके पर रैली निकालने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए रैली की गई। सलामती दस्तों ने मुजाहिरीन की पिटाई की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की सड़कों पर उतरे हजारों मजदूरों ने इस बरस तनख्वाह में 30% इजाफे का मुतालबा किया। मलेशिया में मजदूरों ने मुजवजा टैक्स के खिलाफ रैली की। उधर ताइपी में मजदूरों ने बेरोजगारों के साथ मिलकर कम मजदूरी के खिलाफ एहतजाज किया। हांगकांग में एहतजाजियों ने बेहतर जिंदगी का मुतालबा करते हुए हुकूमत से मकामी अफराद को मुलाजमत देने पर तवज्जो देने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर लेबर डे के मौके पर तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में एहतजाजियों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान जमकर तसादुम हुआ। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर हुकूमत ने किसी भी किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के दीगर ममालिक में यौम मई तकारीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में मे डे के मौके पर हालात कशीदा हो गए। तकसीम स्क्वायर की जानिब रवाना तुर्की के लेबर तंजीमों को सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक लिया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी एहलकारों और एहतजाजियों के दरमियान हालात कशीदा हो गए। वाज़ेह है कि मे डे का तुर्की के तकसीम स्क्वायर से पुराना रिश्ता है। 1970 में तकसीम स्क्वायर पर जमा मजमे पर की गई फायरिंग में 34 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके चलते हुकूमत ने तकसीम स्क्वायर पर किसी भी किस्म की अवामी रैलियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। दूसरी जानिब रूस में लेबर डे के मौके पर ट्रेड यूनियन के सैकड़ों कारकुनों ने हाथों में लाल झंडियां थामे मॉस्को के रेड स्क्वायर तक मार्च किया। 1991 के बाद यह पहला मौका था जब लेबर डे के मौके पर इस मशहूर स्क्वायर पर रैली मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर रूस के रुकन पार्लियामान ने मजमे से खिताब करते हुए क्रीमिया के रूस में इल्हाक का खैर मकदम किया और क्रीमिया की आवाम को मुबारकबाद दी। मे डे के मौके पर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रेन और दीगर खिदमात बंद देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर लेबर डे के मौके पर गजा शहर की सड़कों पर हजारों फिलिस्तीनियों ने मार्च किया। मुजाहिरीन ने गजा पट्टी में मजदूरों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया।
2007 میں حماس کے ذریعے غزہ پٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے اسرائیل نے علاقے کے بندرگاہوں کو سیل کر رکھا ہے۔ ناکہ بندی کے سبب علاقے میں بے روزگاری اور غربت میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ عالمی منظر میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد چل لوٹیں گے۔ ارے رامو تہر بیٹا کسن آج کل دکھائی نہیں کھے دیت۔ ارے شہر گلوا بجلی کا کام سیکھے۔ بہت ٹھیک، گاؤں میں تو بجلیاں نہیں کھے، واپس آ کے لالٹین بیچی کا۔ ارے آنے والا کال کا تیاری کرتا، گاؤں میں بجلی آئی، نیمن دن آنے والا با۔ کیا مطلب؟ مودی جی کے جتاوے کے، بھاجپا کے بہمت دلاوے کے، تبے تو نیمن دن آئی۔ کمل کے بٹن دباوے کے، بھاجپا کے جتاوے کے۔ دہلی میں خوبصورت پائیدار نئے نئے ڈیزائن کی فٹ ویئرز کا ہول سیل ڈیلر ہمالیہ فٹ ویئرز، 5235 بلی مارا، چاندنی چوک، دہلی۔ مہیلائیں ہیں بھارت کے مضبوط ہاتھ۔ مہیلاؤں کو ملے گا جیوکا کے لیے 1 لاکھ روپے تک کا آسان لون، اور ان کی سرکشا کے لیے پولیس فورس میں ہوں گی 25% مہیلائیں۔ کانگریس کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ، ہر ہاتھ شکتی، ہر ہاتھ ترقی۔ مزدور ہے بھارت کے مضبوط ہاتھ۔ مزدور بھائی بہنوں کو ملے گی مفت دوائیاں اور علاج کی سرکشا، ساتھ میں پینشن کی گارنٹی بھی۔ کانگریس کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ، ہر ہاتھ شکتی، ہر ہاتھ ترقی۔ युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर, और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। بریک کے بعد عالمی منظر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ 200 لڑکیوں کے اغوا کے معاملے پر نائجیریا میں احتجاج جاری ہے۔ لوگوں نے احتجاجی مارچ کر کے حکومت سے لڑکیوں کو رہا کرانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ تقریباً 200 لڑکیوں کو ملک کے شمال مشرق میں سرگرم اسلامی انتہا پسند گروپ بوکو حرام نے اغوا کر رکھا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بوکو حرام لڑکیوں کی رہائی کے لیے تاوان کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایک تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اغوا شدہ لڑکیوں کو اغوا کاروں سے شادی کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان لڑکیوں کو چیبوک شہر کے ایک اسکول سے اغوا کیا گیا تھا۔ افغانستان سے جیسے جیسے امریکی افواج کے مجوزہ انخلا کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، ملک کی معیشت میں سدھار آ رہا ہے، لیکن یہ سدھار قانونی ضوابط کے بجائے غیر قانونی طریقوں سے آ رہا ہے۔ امریکہ کے سیاسی اور فوجی حکام یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کو اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے ملک میں نہ صرف حفاظتی صورتحال بہتر ہوئی ہے، بلکہ سماجی تانا بانا بھی سدھرا اور جرائم اور بدعنوانی میں بھی کمی آئی۔ تاہم اقوام متحدہ کی منشیات اور جرائم کے بارے میں جاری کی گئی رپورٹ امریکی دعووں کی پول کھول رہی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال افغانستان میں 2,09,000 ہیکٹیئر اراضی میں افیم کی کاشت کی گئی، جو اس سے 1 سال پہلے کے مقابلے میں 36% زیادہ تھی۔ رپورٹ کے مطابق سن 2014 میں افیم کی کاشت اتنی ہی یا اس سے بھی زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح جنوبی افغانستان کے صوبے ہلمند کے مرجا ضلع میں اس سال افیم کی بمپر کاشت کی توقع ہے۔ حکام اعتراف کرتے ہیں کہ افیم کی پیداوار میں زبردست اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان کی وزارت انسداد منشیات کی اسٹریٹجی اور امریکہ کی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں۔ سیمه چې حکومت نه دی یا حاکمیت نشته هغه ساحه کې ډېر کرل کېږي او تر یوه حده پورې چې زه چې ګورم هغه استراتیژي چې زموږ سره دی او موږ مثلا دا څو کاله چې کمپاین کړی دی
هغه استراتیژي کې چې وزارت مبارزه له مواد مخدر سره د دوستان خارجي سره چې دوی لري هغه استراتیژي داسې موافق استراتیژي نه ده. په دغه کرل انډسټري اوس په ساحه دشتي کې ډېر دی. चंद साल कबल अफीम की पैदावार में कमी देखी गई थी, जब अमरीकी अफवाज ने तालिबान की फंडिंग और बदउनवानी के इस चारे पर लगाम लगाने की कोशिश की। ताहम अफीम की पैदावार में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, क्योंकि इसकी काश्तकारी और तिजारत में मुलविस अफराद और बदउनवान हुक्काम पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं। इंसदाद मुनशियात से मुतालिक अफगान दस्ता अभी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया है। मुनशियात और जराइम के बारे में अफगान हेडक्वार्टर की कारगुजार डायरेक्टर अशीता मित्तल कहती हैं कि अफीम की काश्त जिन इलाकों में की जाती है वहाँ रसाई आसान नहीं और ये इलाके गैर महफूज हैं। इसके अलावा खास तौर पर इस साल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए इलेक्शन से जुड़ा हमारा खास प्रोग्राम इलेक्शन एक्सप्रेस। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आंदोलन किए, धरने दिए, चाय पे चर्चा, नई उम्मीदें, भाषणबाजी, तू मैंने, सीटे वीटे, टिकट विकट, रूठना मनाना, मोर्चे पे मोर्चा, सब कुछ बस अब आपकी बारी। मेरी? जी हाँ, वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं हूं हिना। नाज़रीन 8वें मरहले की वोटिंग 7 मई को है। इंतखाबात के पेश नजर 7 रियासतों की 64 सीटों पर तशहीरी मुहिम भी जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी समेत दीगर जमातों के स्टार कैंपेनर खूब पसीने बहा रहे हैं। तो नाज़रीन आइए नजर डालेंगे आज की इंतखाबी सरगर्मियों पर। बनारस का मुकाबला दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। जेडीयू ने केजरीवाल की हिमायत का ऐलान किया है। पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुखालिफ है, इसलिए उसने केजरीवाल की हिमायत का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने बनारस के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी ने बनारस की तरक्की के लिए खाका तैयार किया है। उसने रिवर यानी नदी, वीवर यानी बुनकर और सीवर यानी नालियों को सुधार कर बनारस को बेहतर और मिसाली शहर बनाने का मंशूर में वादा किया है। विकास का मतलब सिर्फ मॉल्स या चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाना है, बल्कि यहाँ के लोगों का मानना है और यहाँ के हर वर्ग के लोगों से ये राय निकल के आई है कि बनारस एक दुनिया भर की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में डेवलप हो। इसलिए आम आदमी पार्टी ने इसको एक शब्द दिया है कि बनारस को सर्वधर्म पवित्र नगरी यानी कि होली सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए बनारस शहर को सर्वधर्म पवित्र नगरी का दर्जा दिलाते हुए विकसित करने के लिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की व्यवस्था कराई जाएगी। इस पैकेज से मुख्य रूप से गंगा को साफ रखने, घाटों के विकास, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, पंचकोशी मार्ग का विकास, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक विरासत के रखरखाव, नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा